Hello friends, how are you? Hope you all are happy and fine. Hi, this is your friend Advait Pavaskar. Today we will learn the theory part of EOQ, Economic Order Quantity. So let's begin. Hello everyone. Today we are going to discuss the subject cost accounting. In cost accounting, there are various topics, out of which we are going to start with the first, material costing. In material costing, we are going to start with economic order quantity. So let's begin with the here we are going to start with subject. So subject name is cost accounting. In cost accounting, say this is a totally new subject for you. In the earlier 2 years, you learn financial accounting, and in SYCOM you learn management accounting also. But as far as cost accounting is concerned, it is a totally new subject for you. In this subject, what we are going to learn is first introduction to cost accounting. It's a pure theory chapter. Then second chapter is material cost. In material cost, we are going to learn two different types of questions. That is first calculation of economic order quantity, and the second one is valuation of stock. That is methods for valuation of stock. Second chapter is labor cost. Under this also we are going to learn the two different types of questions. उसमें एक जो है that is calculation of incentive plans, and the second part is the calculation of wage cost. That is net wages and labor cost. Third chapter is next chapter is that is overheads. Under overheads also you are going to learn two different types of questions. One is related with the allocation of overheads, and the second is calculation of machine hour rate. Next chapter is classification of cost and cost sheet. Now under this we are going to learn a very important question that is called as what? Cost sheet. And related with the cost sheet only, there is one more chapter, reconciliation of cost and financial account. Under this chapter, we are going to reconcile the differences between the cost account and financial account. अभी ये reconciliation मतलब its topic is like your BRS, जैसे आपने FIGC में किया था, bank reconciliation statement, balance as per cash book and balance as per passbook. Why there is a difference in these two balances? उसको रिकंसाइल मैच करने के लिए आपने जो स्टेटमेंट बनाया था बीआरएस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, somewhat of that type only the statement which you have to prepare, that is reconciliation of cost and financial account. Now under material costing, the topic which we are going to discuss today is economic order quantity, known as EOQ. Now we are dealing with मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जहाँ पर रॉ मटेरियल खरीदा जाता है और उससे आप फिनिश गुड्स बनाकर बेचते हो। तो लगभग मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में हमेशा जो परचेज डिपार्टमेंट होता है उनके लिए हमेशा ये मुश्किल होता है ये डिसाइड करना कि कौन से क्वांटिटी में जो है हम लोग गुड्स को खरीदेंगे। दैट इज डिसाइडिंग द ऑर्डर क्वांटिटी। से फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे बात करता हूँ, समझो हम लोग एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की अगर भी बात करते हैं, सपोजिंग हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है और हम लोग साल भर में वहाँ पर 1000 टेलीविजन बेच रहे हैं, 1000 या फिर हम लोग 1200 टेलीविजन बेच रहे हैं समझो पूरे साल भर में। तो क्या हम लोग 1200 की 1200 कम जो टेलीविजन है वो एक साथ खरीदेंगे, या फिर 100 की क्वांटिटी में खरीदेंगे, या फिर 500 की क्वांटिटी में खरीदेंगे? कौन से क्वांटिटी में उसको खरीदना है, दैट इज अ मेन इशू। अभी ये मेन इशू क्यों होता है तो वो देखते हैं। इफ ऑर्डर साइज इज बिग,
then the ordering cost is less but the storage cost will be high. सिर्फ अभी हमने जो एग्जांपल डिस्कस किया था वैसे अगर हम लोग पूरे साल भर में 1200 टेलीविजन बेचने वाले हैं और 1200 के 1200 टेलीविजन अगर हम लोग एक ही साथ ऑर्डर करते हैं तो हमारा ऑर्डर का खर्चा जो है वो कम हो जाएगा क्योंकि एक ही ऑर्डर होगा साल भर में। लेकिन फिर वो 1200 टेलीविजन सेट्स हमको संभाल के रखने होंगे, उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना होगा, वो खर्चा जो है वो ज़्यादा आएगा। मतलब एक खर्चा कम हो रहा है तो दूसरा खर्चा बढ़ रहा है। इफ ऑर्डर साइज इज स्मॉल, अगर मान के चलते हमको पूरे साल भर में 1200 टेलीविजन बेचना है और हम लोग 100 की क्वांटिटी में खरीदते हैं, तो हर वक्त हम लोग 100 क्वांटिटी खरीदेंगे तो हमारा संभाल के रखने का, उस गुड्स को संभाल के रखने का खर्चा, उसमें जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका खर्चा वो कम हो जाएगा। लेकिन फिर साल भर में हमको 12 ऑर्डर्स देने होंगे तो हमारा ऑर्डर का खर्चा जो वो बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली स्टोरेज कॉस्ट में क्या आता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या आता है, स्टोरेज कॉस्ट को वैसे कैरिंग कॉस्ट बोलते हैं, तो वो एग्जैक्टली खर्चे में क्या आता है वो तो हम लोग थोड़े लेटर ऑन स्टेज में सीखने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग इतना सीख रहे हैं कि अगर हमारा ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा तो हमारा ऑर्डर नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम हो जाएंगे लेकिन गुड्स को संभाल के रखने का खर्चा ज़्यादा होगा। वैसे अगर हम लोग कम क्वांटिटी में खरीदेंगे तो गुड्स को संभाल के रखने का खर्चा कम होगा लेकिन बार बार ऑर्डर देना पड़ेगा, तो इसका मतलब हुआ ऑर्डरिंग का खर्चा बढ़ जाएगा। The size of the order for which both ordering and carrying costs are minimum is known as EOQ. हमको एक ऐसे लेवल पर आना है, एक ऐसा क्वांटिटी डिसाइड करना है कि जो क्वांटिटी अगर हम लोग खरीदेंगे उस वक्त हमारा कैरिंग कॉस्ट मतलब गुड्स संभालने का खर्चा एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट गुड्स ऑर्डर करने का खर्चा, ये दोनों मिनिमम होंगे। याद रखो लोवेस्ट नहीं है, दे आर एट मिनिमम लेवल। तो ऐसा जो साइज होगा, ऐसा जो क्वांटिटी होगा, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड एज व्हाट, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। assumptions कंडीशंस फॉर ईओक्यू डिसाइड करने के लिए हमारे पास क्या assumptions होंगे। पहला assumption है एंटीसिपेटेड यूसेज ऑफ मटेरियल इन यूनिट्स इज नोन। जैसा भी हमने कुछ एग्जांपल में डिस्कस किया कि हम लोग साल भर में 1200 टेलीविजन बेचेंगे, ऐसा हमने अज्यूम किया, जरूरी नहीं कि ये एक्चुअली हो जाए, हमको कुछ ना कुछ अज्यूम करना होगा। हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं एंटीसिपेटेड यूसेज ऑफ मटेरियल यूनिट्स इज नोन, हम लोग अज्यूम करें कि हमको पूरे साल भर का रिक्वायरमेंट पहले से पता होगा, ये अजम्पशन है। दूसरा, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द मटेरियल इज कांस्टेंट एंड इज नोन, मतलब हम लोग जो मटेरियल खरीदते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टेलीविजन खरीदने वाले, उसका परचेस प्राइस हमको एडवांस में पता होगा और वो पूरे साल भर में कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज होने वाला नहीं है, ऐसा हम लोग अज्यूम करेंगे। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम आर नोन एंड दे आर फिक्स, मतलब एक ऑर्डर देने का खर्चा कितना होगा वो भी हमको पहले से पता होगा और पूरे साल भर में उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। मतलब पूरे साल भर में ना ट्रांसपोर्टेशन में चेंजेस आएगा, ना पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, ना कम हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा हमको अज्यूम करना होगा। कैरिंग कॉस्ट, गुड्स को संभाल के रखने का खर्चा, उसका इंश्योरेंस का खर्चा, उसमें जो हमने इन्वेस्टमेंट किया उसका फाइनेंस कॉस्ट, ये सारा खर्चा हमको पहले से पता होगा और वो साल भर में चेंज नहीं होगा, ऐसा हमको अज्यूम करना है। And the last assumption is the quantity of material order is received immediately, मतलब अगर हम लोग ऑर्डर देंगे तो हमको तुरंत मटेरियल मिल जाएगा, there is no lagging in between, दो ऑर्डर के बीच में टाइम वेस्ट होने वाला नहीं है, we can immediately get the delivery, ये ऐसा हमको अज्यूम करना है। इस assumptions पर ही हमारा EOQ बेस है। फैक्टर्स ऑफ EOQ, पहला फैक्टर जो हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे थे वो था ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक ऑर्डर देने का खर्चा क्या हो सकता है, इसके बारे में देखते हैं। इट रेफर्स टू द कॉस्ट इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग इनपुट्स, हमारा जो मटेरियल जो हम लोग खरीदने वाले हैं वो खरीदने के लिए जो खर्चा होगा वो हमारे बिजनेस में लाने के लिए जो खर्चा होगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ऑर्डरिंग कॉस्ट। फर्स्ट, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर। अभी हम लोग थोड़े बड़े बिजनेस की बात करते हैं। एक बड़ा बिजनेस है, बड़ी कंपनी है, से फॉर एग्जांपल कोई लिमिटेड कंपनी है, तो उनके पास अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे परचेस डिपार्टमेंट, स्टोर्स डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट,
ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। प्रोडक्शन जहाँ पर हो रहा है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जब भी मटेरियल की जरूरत होती है वो इंटीमेशन देते हैं स्टोर्स डिपार्टमेंट। फिर स्टोर्स डिपार्टमेंट क्या करता है, अपना रिक्वायरमेंट का रिक्विजिशन जो है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो भेज देते हैं परचेस डिपार्टमेंट में। सो परचेस डिपार्टमेंट अकॉर्डिंगली गिव द एडवर्टाइजमेंट फॉर कोटेशंस, टेंडर्स वगैरह। फिर वो टेंडर्स आते हैं, उसको स्क्रूटिनाइज करना है, उसके बारे में डिसीजन लेना है, मीटिंग फाइनल करना है, ये सारा हमारा ऑर्डर प्लेस करने के लिए खर्चा हो रहा है। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एक बार हमने ऑर्डर दे दिया तो जो समझो हमारा बिजनेस मुंबई में और गुड्स जो आने वाले वो दिल्ली से आने वाले हैं, सो दिल्ली से मुंबई तक आने का जो खर्चा है वो भी इंक्लूड होगा हमारे ऑर्डरिंग कॉस्ट में। कॉस्ट ऑफ रिसीविंग गुड्स, अभी ये जो गुड्स हमको रिसीव हुआ है उसको वहाँ पर उसका इंस्पेक्शन होगा, उस गुड्स को हम लोग रिसीव करेंगे तो वहाँ पर कुछ ना कुछ स्टाफ हमारा जो है वो एंगेज होगा, तो ये सारा जो खर्चा है वो इसमें इंक्लूड है। कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्टिंग गुड्स, एक बार गुड्स आ गया तो उसको हम लोग चेक करेंगे कि जैसे हमने सैंपल के हिसाब से ऑर्डर किया था हमारे गुड्स वो सैंपल के हिसाब से मैच हो रहे कि नहीं हो रहे, क्वालिटी उनका अप्रोप्रिएट है या नहीं है, तो ये गुड्स को इंस्पेक्ट करने का खर्चा आएगा। ये था हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट। Now there is an inverse relationship between order size and ordering quantity, ordering cost. Inverse मतलब opposite relationship। मतलब क्या होगा, अगर आप बड़ी ऑर्डर दोगे मतलब बड़े क्वांटिटी का ऑर्डर दोगे तो आपको साल भर में कम ऑर्डर देने होंगे, कम ऑर्डर देना होगा, इसका मतलब ऑर्डरिंग का खर्चा भी क्या होगा, कम आ जाएगा। सी वंस अगेन इनवर्स रिलेशनशिप इन साइज एंड कॉस्ट, जितना हमारा क्वांटिटी ज्यादा होगा उतने ऑर्डर्स कम होंगे, ऑर्डर्स कम होंगे मतलब खर्चा कम हो जाएगा। अगर हम छोटे छोटे क्वांटिटी में स्मॉल होगा, हमारा साइज जो है वो स्मॉल होगा, तो वी हैव टू गिव द मोर नंबर ऑफ ऑर्डर्स, जितने ऑर्डर्स ज्यादा होंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट भी ज्यादा होगा। बिगर ऑर्डर क्वांटिटी मीन्स लोअर ऑर्डरिंग कॉस्ट, जितना क्वांटिटी हमारा ज्यादा होगा तो उतने ऑर्डर्स कम जाएंगे, और ऑर्डर्स कम जाएंगे तो इसका मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट भी हमारा कम हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, कैरिंग कॉस्ट, गुड्स को संभाल के रखने का खर्चा। तो उसमें क्या क्या आता है, इट रेफर्स टू द कॉस्ट incurred in maintaining a given level of inventory। हमारे पास गुड्स आ गया तो जब तक वो कंज्यूम नहीं होता है, एग्जॉस्ट नहीं होता है, तब तक उसको हमको संभाल के रखना है, तो उसके लिए जो खर्चा आएगा दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, गुड्स कैरिंग कॉस्ट। दिस कॉस्ट इंक्लूड्स, देखो क्या क्या इंक्लूड हो रहा है इसमें, कॉस्ट ऑफ स्टोरेज स्पेस, गुड्स को रखने के लिए हमको गोडाउन चाहिए तो गोडाउन का भाड़ा आएगा। कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग मटेरियल्स, मतलब हमारे पास गोडाउन में गुड्स आ गया, वहां से वो स्टोर डिपार्टमेंट में आएगा, स्टोर डिपार्टमेंट से परचेस डिपार्टमेंट में जाएगा, तो हैंडलिंग एक जगह से दूसरी जगह पर गुड्स लेकर जाने का खर्चा। कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, गुड्स को इंश्योर भी करवाएंगे ताकि हम लोग किसी मुसीबत से बच सकें, तो इंश्योरेंस फ्री में तो नहीं होगा, उसका हमको कॉस्ट बेयर करना है। कॉस्ट ऑफ डिट्राइटेशन और एब्सोलेंस, मतलब अगर हमने समझो साल के शुरुआत में गुड्स खरीदा है और वो 3-4 महीने हमारे गोडाउन में रहने वाला है, तो हो सकता है वो 3-4 महीने में वो खराब भी हो जाएगा, या फिर कभी समझो आउट ऑफ फैशन हो गया तो उतना गुड्स हमको फेंकना होगा, तो ये सारा जो खर्चा है ऑब्सोलेंस दैट इज आउटडेटेडनेस, मतलब जैसे मोबाइल में आप देखते हो हर 2 महीने में 3 महीने में नया वर्जन आ रहा है, 6 महीने में नया वर्जन आ रहा है, तो पुराने वाले वर्जन का जो मोबाइल का कॉस्ट है या फिर प्राइस है वो गिर जाता है, तो उसको हमको सस्ते में बेचना पड़ेगा, सो दैट बिकम्स अवर लॉस आल्सो। कॉस्ट ऑफ स्टोर स्टाफ, हम गोडाउन में हमारे गोडाउन में जो है कुछ वर्कर्स रहेंगे वहाँ पर जो इंस्पेक्शन के लिए काम आएंगे, वहाँ पर उसको रिकॉर्ड रखने के लिए वहाँ पर काम में आएंगे, पैकिंग के लिए काम आएंगे, तो यहाँ पर ये जो स्टाफ है उनका पगार भी तो हमको देना होगा, तो उसका जो खर्चा है ये हमारे कैरिंग कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। एक्सेट्रा लिखा है, इसका मतलब उसमें जो फाइनेंस लगेगा, अगर हम लोग क्वांटिटी खरीद के रख रहे हैं तो उसमें उतना हमारा पैसा भी इन्वेस्ट हो गया, पैसा ब्लॉक हो गया, तो इसका मतलब हुआ कि वहां पर हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो इन्वेस्टमेंट का भी हमको कॉस्ट बेयर करना है, दैट इज फाइनेंस कॉस्ट। देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्डर साइज एंड कैरिंग कॉस्ट। ना पॉजिटिव रिलेशनशिप मतलब सेम डायरेक्शन, मतलब हमारा ऑर्डर साइज अगर बड़ा होगा तो ज्यादा गुड्स को हमको संभाल के रखना होगा, मतलब खर्चा ज्यादा आएगा। अगर हमारा ऑर्डर साइज छोटा होगा, कम क्वांटिटी में खरीदेंगे
तो क्या होगा, गुड्स को कम संभाल के रखना है, कम गुड्स को संभाल के रखना है, तो हमारा कैरिंग कॉस्ट भी क्या होगा, कम होगा। बिगर ऑर्डर क्वांटिटी मीन्स हायर कॉस्ट। ज्यादा क्वांटिटी में गुड्स खरीदेंगे तो गुड्स को ज्यादा संभाल के रखना पड़ेगा, मतलब ज्यादा स्पेस की जरूरत होगी, ज्यादा इंश्योरेंस का खर्चा आएगा, फाइनेंस का खर्चा ज्यादा होगा, मतलब इनडायरेक्टली हमारा कैरिंग कॉस्ट ज्यादा होगा। ये था हमारा कैरिंग कॉस्ट। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज लिमिटेशंस ऑफ ईओक्यू। ये जो ईओक्यू का हमारा कैलकुलेशन है, मतलब हमारा ये जो फॉर्मूला से एक आंसर आएगा कि कौन से क्वांटिटी में हमको खरीदना है गुड्स को, तो उसके लिमिटेशंस क्या क्या है, मतलब क्या क्या ड्रॉबैक्स है। तो पहला है, expected annual usage may not be same as the actual due to unusual or unexpected demand for inventory। मतलब क्या है इसका, कि हमने जो सोचा था कि पूरे साल भर में हमको इतने मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, हम लोग इतना मटेरियल बेचेंगे, आउटपुट बेचेंगे, जिसके लिए हमको रॉ मटेरियल इतने की जरूरत पड़ेगी, हमने वो अंदाजा लगाया, लेकिन ऐसा जरूर नहीं कि हमारा अंदाजा हर वक्त सही होगा। जैसे आप इस साल जानते हो, जनवरी में किसी ने नहीं सोचा होगा कि देयर विल बी लॉकडाउन ऑफ 3 और मोर मंथ्स। तो जो एस्टिमेशन किए गए होंगे जनवरी के महीने में, वो एस्टिमेशन सारे फेल हो चुके होंगे आज के तारीख में। Rate of usage may not be constant due to unusual and unexpected demand for inventory। हम लोग जो क्वांटिटी यूज करने वाले हैं, जैसे हमारा ईओ का कैलकुलेशन हमको बताएगा कि हमको ये टाइम पीरियड में इतना इतना क्वांटिटी खरीदना होगा। जैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कि साल भर में इतना क्वांटिटी यूज हो रहा है, तो वो हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि वहां पर जो सेल है या फिर जो रिक्वायरमेंट है वो हमारे कांस्टेंट लेवल पर है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे अगर हम लोग समझो कोल्ड ड्रिंक की बात करते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक्स के बिजनेस के लिए जनवरी फरवरी में डिमांड कम होगी, मार्च में, क्योंकि जनवरी फरवरी में विंटर सीजन होता है, डिमांड में भी लेस। जनवरी सॉरी मार्च अप्रैल मई में डिमांड ज़्यादा होगी बिकॉज देयर इज अ समर सीजन। फिर वापस जून जुलाई अगस्त में बारिश की वजह से डिमांड कम हो सकती है, अक्टूबर में गर्मी की वजह से वापस डिमांड बढ़ेगी। सो देयर इज अ अनइवन पैटर्न। तो हम लोग वो जो क्वांटिटी है वो एक कांस्टेंट रेट में खरीदेंगे या फिर कांस्टेंट रेट में बेचेंगे, ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। Ordering cost and carrying cost may not be constant due to fluctuation in the cost of various components comprising the cost। हमने जब देखा था assumption में कि हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डर देने का खर्चा और गुड्स को संभालने का खर्चा, ये हमको पहले से पता होगा और वो पूरे साल भर में चेंज नहीं होगा, ऐसा हम लोग अज्यूम करते हैं। लेकिन ये सही assumption नहीं है, क्योंकि पूरे साल भर में देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स द डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट कॉस्ट ऑल टुगेदर। जैसे अगर प्राइस बढ़ जाते हैं ऑयल एंड पेट्रोल के, तो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ता है तो इट हैज गॉट द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑन एवरीथिंग। अभी समझो पूरे साल भर में कहीं पर इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने अपने रेट्स बढ़ा दिए प्रीमियम के, तो हमारा कैरिंग कॉस्ट जो है वो सेम नहीं होगा पूरे साल भर में के लिए। सो दीज आर द ऑल लिमिटेशंस ऑफ ईएक्यू, ड्रॉबैक्स ऑफ ईएक्यू। लीड टाइम मे नॉट बी कांस्टेंट ड्यू टू रीजन बियॉन्ड द सप्लायर्स कंट्रोल। जैसे हमने वहां पर अज्यूम किया था कि हम लोग ऑर्डर देंगे और हमको गुड्स तुरंत मिल जाएगा। इमेजिन द सिचुएशन ऑफ कोरोना लॉकडाउन। किसी बिजनेस ने ऑर्डर दिया भी होगा, लेकिन यहाँ पर लॉकडाउन की वजह से ट्रांसपोर्टेशन बंद है, फैक्ट्रीज बंद है, तो जिसने सप्लायर जो हमारे जिन्होंने पहले वादा किया था हमको सप्लाई करने के गुड्स टाइम पर, हो सकता है अब ये फैक्टर्स उनके फेवर में नहीं है। सो बिकॉज ऑफ फैक्टर्स बियॉन्ड देयर कंट्रोल, जो डिलीवरी का जो टाइम है वो फ्लक्चुएट हो सकता है। तो ये सारे लिमिटेशंस है हमारे ईओक्यू के। आते हैं मेन चीज पर जिसके बेसिस पर हमको क्वेश्चंस सॉल्व करना है, दैट इज फॉर्मूला ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। The famous mathematician Wilson derived the formula which is used for determining the size of order for each of the purchases at minimum ordering and carrying cost। तो मैथमेटिशियन कॉल्ड एज नेम एज विल्सन, जिन्होंने ये फॉर्मूला बनाया, जिसकी वजह से हम लोग आज डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से स्लॉट में, कौन से साइज में, कौन से क्वांटिटी में हमको गुड्स खरीदना होगा, ताकि हमारा ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट, गुड्स को ऑर्डर करने का और गुड्स को संभाल के रखने का खर्चा जो है वो क्या होगा, मिनिमम होगा। तो ईओक्यू का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ 2AO डिवाइडेड बाय C।
स्क्वायर रूट में 2 मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय ओ डिवाइडेड बाय सी। तो इसका स्क्वायर रूट जो है दैट इज द आंसर फॉर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जहां पर ए का मतलब होगा एनुअल यूसेज यूनिट्स, साल भर में हम लोग कितना मटेरियल परचेस करने वाले हैं, साल भर में हमारा कितना रिक्वायरमेंट है मटेरियल का, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट ए, एनुअल, याद रखो साल का। मतलब अगर क्वेश्चन में मंथली दिया तो आपको ईयरली कन्वर्ट करना है। O स्टैंड्स फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक सिंगल ऑर्डर देने का खर्चा कितना है। ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर देने का खर्चा कितना होगा, दैट स्टैंड्स फॉर O। नाउ C स्टैंड्स फॉर एनुअल कैरिंग कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। फिर से बार ध्यान से सुनिए, एनुअल कैरिंग कॉस्ट, साल का खर्चा किस चीज का, एक यूनिट को संभाल के रखने का। तो एक यूनिट को एक साल भर में संभालने के लिए क्या खर्चा आता है, दैट इज डिनोटेड बाय सी। तो ये सी कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज पर एनम मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। समझो क्वेश्चन में लिखा हुआ कैरिंग कॉस्ट इज 10% पर एनम। तो हमको क्या करना है, एक सिंगल यूनिट रॉ मटेरियल का सिंगल यूनिट का जो रेट दिया हुआ, कॉस्ट दिया हुआ, उसको मल्टीप्लाई करना है उस परसेंटेज से। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा लिखा हुआ कैरिंग कॉस्ट इज 10% पर एनम, उनको 10% से मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करना है, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, एक यूनिट का जो कॉस्ट होगा उसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये था आपका फॉर्मूला ऑफ ईओक्यू, एंड बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला हमको कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने होंगे। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसके लिए आता है आपको कैलकुलेशन, कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बाय फॉर्मूला मेथड एंड बाय टैबुलेशन मेथड। तो उसमें से जो फॉर्मूला मेथड है वो अभी हमने यहाँ पर सीखा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बहुत बार थ्योरी में क्वेश्चन आता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन ईओक्यू। तो ये सारी चीजें जो अभी हमने सीखी है, ये सारी चीजें आपको वहां पर काम आएगी। ईओक्यू का मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईओक्यू, व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ ईओक्यू, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ईओक्यू, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ईओक्यू। ये आप सारी चीजें वहां पर आप लिख सकते हो, और शॉर्ट नोट बेस्ड ऑन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो ये था हमारा पार्ट। तो हमने यहाँ पर जो डिस्कस किया हुआ था इकोनॉमिक। Now we'll discuss example for EOQ. Supposing the question is like this: from the following information, calculate EOQ according to formula method and tabulation method. The question is like annual consumption of material 3000 kg, cost of placing order rupees 30, cost per kg rupees 5, storage and carrying cost 10% on average inventories. So let's start with the formula method for EOQ. तो फॉर्मूला आपको पता है EOQ का, EOQ is equal to square root of 2 multiplied by A multiplied by O divided by C, where जहाँ पर A क्या होगा, A स्टैंड्स फॉर एनुअल कंजम्पशन इन केजेस। तो क्वेश्चन में दिया ही है पूरे साल भर में कितना मटेरियल कंज्यूम करने वाला है, 3000 kg। सो A इज इक्वल टू 3000। O का मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, एक ऑर्डर प्लेस करने का खर्चा। तो वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है रुपीज़ 30, तो हमारा O आ गया 30। C कॉस्ट ऑफ स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट पर केजी पर एनम, एक यूनिट को एक साल तक संभाल के रखने का खर्चा। तो क्वेश्चन में लिखा है एक यूनिट का कॉस्ट वो कितना है, 5 रुपीज़। 1 kg कितने में आने वाला है, 5 रुपीज़। और एक यूनिट को एक साल संभालने का खर्चा कितना होगा, 10%। तो 5 रुपीज़ का 10% दैट कम्स टू 50 पैसा। तो हमारे पास ये तीन वैल्यूज़ आ गया। A इज इक्वल टू 3000, O इज इक्वल टू 30, C is 0.50. Now with this values we'll solve the formula for EOQ by substituting the values. So the formula is EOQ square root of 2AO divided by C. तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, 2 as it is, A का वैल्यू है 3000 मल्टीप्लाइड बाय O का वैल्यू है 30 डिवाइड बाय C का वैल्यू है 0.50। तो आपका न्यूमरेटर आ गया 1,80,000, डिनोमिनेटर है 0.50।
तो डिवाइड करने के बाद आ गया 3,60,000, जिसका स्क्वायर रूट कितना होगा 600. देयरफॉर EOQ, दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इज 600 kgs. नाउ we'll try to calculate the other things also. नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर, हमको साल भर में कितने ऑर्डर्स देने होंगे. तो फॉर्मूला है A डिवाइड बाई Q, हमको साल भर में कितना यूनिट्स लगने वाला है 3000, डिवाइड बाई क्वांटिटी, हम लोग कौन से क्वांटिटी में गुड्स खरीदेंगे 600. सो 3000 डिवाइड बाई 600, सो नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर इज 5. एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, हमको साल भर में ऑर्डर का खर्चा कितना होगा. व्हाट इज द फॉर्मूला, A डिवाइड बाई Q मल्टीप्लाइड बाई O स्टैंड्स फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर. तो अभी हमने ऊपर ही कैलकुलेट किया था, 5 ऑर्डर्स जाएंगे मल्टीप्लाइड बाई एक ऑर्डर का खर्चा है 30 रुपीज़. तो पूरे साल भर का ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो कितना होगा 150 रुपीज़. नेक्स्ट इज एनुअल कैरिंग कॉस्ट. फॉर्मूला क्या होगा, Q डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई C. तो क्वांटिटी में खरीदने वाले 600 डिवाइड बाई 2, तो 300 हमारा एवरेज क्वांटिटी होगा. ऑन एन एवरेज हमारे गोडाउन में 300 kg का मटेरियल होगा. मल्टीप्लाइड बाय C, दैट इज कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम. एक यूनिट को एक साल संभालने का खर्चा वो कितना है 50 पैसा, 0.5. तो 300 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, दैट कम्स टू अगेन 150. तो इफ यू सी दिस, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट आर एग्जैक्टली सेम, दे आर एट मिनिमम. नाउ विल फाइंड आउट द परचेस कॉस्ट. पूरे साल भर में हम लोग कितना यूनिट्स खरीदने वाले हैं 3000, कॉन्सिडरेट से एट द रेट ऑफ 5. तो पूरे साल भर में हमारा मटेरियल का कॉस्ट जो होगा, मतलब सॉरी परचेस का प्राइस होगा, परचेस कॉस्ट वो होगा 15,000. तो हमारा टोटल मटेरियल कॉस्ट जो है 150 ऑर्डरिंग कॉस्ट, 150 कैरिंग कॉस्ट एंड 15,000 परचेस कॉस्ट. सो टोटल मिलाकर 15,300. नाउ विल लर्न टैबुलेशन मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. हमारे पास 3 वैल्यूज ऑलरेडी डिसाइडेड है. A दैट इज स्टैंड्स फॉर एनुअल कंजम्पशन, वो है हमारा 3000. O दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, वो है ₹30. एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, वो हमने कैलकुलेट किया हुआ है 0.5, दैट इज 50 पैसा. नाउ टैबुलेशन मेथड में हमको ये प्रूव करना है कि हमारा फॉर्मूला का जो आंसर आया था 600 kgs, दैट इज द करेक्ट आंसर. तो ये प्रूव करने के लिए आप जब भी क्वांटिटी डिसाइड करोगे, आपको याद रखना है यू हैव टू टेक दैट आंसर, जो हमारा फॉर्मूला मेथड से जो आंसर आया था 600, उसको आपको सेंटर में रखना है. और इसको प्रूव करने के लिए कि 600 क्वांटिटी जो है 600 kg का क्वांटिटी, दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन. ये प्रूव करने के लिए हमको 2 ऑर्डर साइज डिसाइड करना होगा जो 600 से ज़्यादा होगा. हियर वी हैव टेकन एज 1000 एंड 750. और 2 क्वांटिटी हमको कम लेना होगा जो 600 से कम होगा. सो हियर वी हैव टेकन एज 500 एंड 100. हम ये लेकर ये प्रूव करेंगे तो 600 से ज़्यादा क्वांटिटी भी ऑर्डर करेंगे तो भी कॉस्ट बढ़ेगा, और 600 से कम क्वांटिटी भी ऑर्डर करेंगे तो कॉस्ट बढ़ेगा. तो यू हैव टू प्रूव दैट 600 ऑर्डर क्वांटिटी इज द आइडियल साइज ऑफ ऑर्डरिंग क्वांटिटी. तो देखते हैं कॉलम्स क्या क्या है एंड अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन. पहला कॉलम है ऑर्डर क्वांटिटी, कॉलम नंबर 1, दैट इज Q. मैं 1000 के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर आप उसी की तरह से देख सकते हो बाकी सब वैल्यूज़ के लिए. तो समझो मान के चलते हैं हम लोग पूरा जो परचेस करने वाले हैं 1000 के लॉट में खरीदने वाले हैं, मतलब वी विल गोइंग टू बाय द क्वांटिटी इन 1000 kgs इन ईच लॉट. नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ये हमारा सेकंड कॉलम. ये कैसे कैलकुलेट होगा, A डिवाइड बाई Q. हमको साल भर में क्वांटिटी लगने वाला है 3000, उसको डिवाइड करेंगे 1000 से, Q से 1000 से, तो साल भर में हमारे ऑर्डर्स कितने होंगे 3 ऑर्डर्स. तीसरा कॉलम है ऑर्डरिंग कॉस्ट, थर्ड कॉलम. ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, सेकंड कॉलम में जो आंसर आया हुआ है उसको O से मल्टीप्लाई करेंगे. O क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट. तो सेकंड कॉलम में हमारा आंसर आया कि साल भर में 3 ऑर्डर्स जाएंगे, तो 3 ऑर्डर्स के लिए 30 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से कितना खर्चा आएगा 90 रुपीज़. फिर अगला वाला कॉलम है एवरेज स्टॉक, फोर्थ कॉलम है हमारा एवरेज स्टॉक. कैलकुलेट कैसे करेंगे, Q डिवाइड बाई 2. हमारा क्वांटिटी कितना है 1000, उसको डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा 500. अभी ये एवरेज स्टॉक एग्जैक्टली है क्या, जैसे आप एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करते हो. समझो आपके किसी एग्ज़ाम में मार्क्स आए हुए 98, 92, 85, 75 ऐसे मार्क्स आए और उसका एवरेज निकल कर आ रहा है समझो आपका 85.
तो ज़रूरी नहीं कि आपके हर सब्जेक्ट्स के सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स 85 हो, आपका एवरेज 85 आ रहा है, मतलब कुछ 85 से ज़्यादा होंगे मार्क्स, कुछ 85 से कम होंगे, बट ऑन एन एवरेज आपका जो सेंट्रल वैल्यू है दैट इज़ 85। तो वैसे यहाँ पर एवरेज स्टॉक का मतलब क्या होगा, जब हम लोग हज़ार क्वांटिटी में गुड्स खरीदेंगे तो जिस दिन गुड्स गोडाउन में आ जाएगा उस दिन गोडाउन में स्टॉक होगा हमारा 1000 kgs, लेकिन उसमें से हम लोग मटेरियल यूज़ करते जाएंगे तो 1000 विल बिकम 900, 850, 700, 600, 500, 400, 150 एंड समटाइम्स इट विल बिकम 0। तो जैसे क्वांटिटी खत्म हो जाएगा विल बाय फॉर द अनदर लॉट, तो एक बार फिर से वो 1000 बन जाएगा। तो हमारे गोडाउन में एक्सट्रीम केसेस क्या होंगे, या तो 1000 होगा क्वांटिटी और एक्सट्रीम से लोवेस्ट लेवल पे एक्सट्रीम क्या होगा 0। तो 1000 + 0 1000 डिवाइड बाई 2, उसका एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा 500। तो इसका मतलब एवरेज कैसे निकालोगे, Q डिवाइड बाई 2। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे गोडाउन में हमेशा 500 क्वांटिटी रहेगा, लेकिन ऑन एन एवरेज 500 क्वांटिटी हमारे गोडाउन में रहने वाला है। कैरिंग कॉस्ट, तो हमारा फोर्थ में जो आंसर आया हुआ है उसको C से मल्टीप्लाई करेंगे। C क्या है, दैट इज कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। एक यूनिट को एक साल संभालने के लिए खर्चा 50 पैसा आता है। तो हमारे गोडाउन में अगर 500 ऑन एन एवरेज क्वांटिटी रहने वाला है तो 500 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 दैट कम्स टू 250। टोटल कॉस्ट, तो यहाँ पर हम लोग ऑर्डर कॉस्ट थर्ड कॉलम एंड कैरिंग कॉस्ट 5 कॉलम इन दोनों का टोटल कर रहे हैं। सो 90 + 250 दैट बिकम्स 340। तो 1000 के लिए हमने ये देखा, अभी आप वैसे सबके लिए कैलकुलेट करके देख सकते हो। मैं अभी फर्स्ट कॉलम एंड लास्ट कॉलम को कंपेयर कर रहा हूँ। अगर हम लोग 1000 क्वांटिटी में खरीदते हैं तो हमारा टोटल खर्चा 340 होता है। 1000 की जगह पर अगर हम लोग 750 यूनिट्स खरीदेंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट जो वो 307 रुपये 50 पैसा हो जाएगा, 307.5। तो 1000 क्वांटिटी खरीदने से अच्छा है कि हम लोग 750 के लॉट्स में गुड्स खरीदें। अच्छा, 750 की जगह पर हम लोग 600 के लॉट्स में अगर गुड्स खरीदते हैं तो हमारा खर्चा कितना हो जाएगा, वहाँ पर टोटल खर्चा 300, मतलब ये तीनों में से सबसे लोवेस्ट है। तो इसका मतलब 1000, 750 या 600 में से बेस्ट क्वांटिटी साइज़ कौन सा होगा, 600। अगर हम लोग 600 से भी नीचे जाएंगे, 500 के लॉट में अगर गुड्स खरीदेंगे तो हमारा टोटल खर्चा जो है वो 305 हो गया, मतलब खर्चा बढ़ गया, कम नहीं हुआ उल्टा बढ़ गया। अगर वही हम लोग 100 की क्वांटिटी में अगर खरीदेंगे तो हमारा खर्चा कितना हो रहा है 925, मतलब लास्ट के 3 को अगर कंपेयर करोगे 600, 500 एंड 100, तो अगेन उसमें से भी बेस्ट क्वांटिटी कौन सा निकल कर आ रहा है 600। तो आप टेबल से आपको ये पता चल रहा है कि अगर हम लोग 600 kgs के लॉट में अगर गुड्स खरीदेंगे तो हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट 150 होगा, कैरिंग कॉस्ट भी 150 होगा एंड टोटल कॉस्ट विल बी द लोवेस्ट। आप देख सकते हो लास्ट कॉलम में 300 इज़ द लोवेस्ट फिगर। तो ये टेबल प्रूव करता है इट इज़ advisable to buy the quantities in the size of 600 kgs per lot. Therefore, our economic order quantity is 600 kgs. तो ये था आपका टेबुलेशन मेथड। अच्छा, हमने इसमें मटेरियल कॉस्ट, परचेस कॉस्ट क्यों डिसाइड नहीं किया, क्योंकि दैट विल रिमेन इनडिफरेंट। मतलब आप 1000 क्वांटिटी में भी खरीदोगे तो भी आपको 3000 ही खरीदना है, मतलब 15000 ही खर्चा होगा। 600 क्वांटिटी में खरीदोगे तो भी साल भर में 3000 की क्वांटिटी खरीदने वाला, मतलब परचेस कॉस्ट आपका 3000 ही, सिर्फ 15000 ही होगा। और आप 100 क्वांटिटी में खरीदते हो तो भी आपको साल भर में 3000 ही खरीदना है, तो 3000 का परचेस कॉस्ट तो 15000 ही होगा। सो द परचेस प्राइस जो है 15000 वाला वो हमने इस टेबल में कंसिडर नहीं किया है, बिकॉज दैट इज़ नॉट रिलेवेंट वाइल मेकिंग द डिसीजन, क्योंकि वो तो कॉस्ट सब क्वांटिटी साइज के लिए सेम ही होगा। सो हियर वी हैव कंसिडर ओनली ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड carrying cost for decision making. So finally from this table it is proved 600 is the economic order quantity. अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।